Okay, so welcome back to our regional Monday meetup, Southern Asia. So today being a Monday, we are having our fourth regional Monday meetup. So the idea is that we'll be hosting these meetups that are more focused to certain regions so that people can come and discuss in our local languages if they like. And for instance, right now I'll be able to talk in English or in Hindi. But if there are many people who would like to talk in some other language, I can invite some admins who can speak that language, and we can discuss in that as well. So yeah. So yeah. So currently, the one of the biggest challenges that is going on right now is the NASA Comet Discovery Challenge. Yeah. So this is the one. So as you can see, I mean, it's a big challenge and it's associated with NASA. So these are usually pretty prestigious. And also the unique thing about this challenge is that if your machine learning algorithm manages to find any comets, you'll actually get the credit for that. So not only you'll get a chance to win the challenge, you are actually going to get a credit for the discovery of the comet itself. So that is, I think, a very big deal. To go in the names of astronomy and to have your name over there, I think it should be a very big deal. So if anybody is interested in this machine learning challenges, then they should definitely check. I mean, go through the specifications, and if they think they can compete, they should definitely try to do so. So what I'll do is I'll just copy and paste all the links over here. Okay. So moving on to the next major thing. So we are going to have a Wipro career hack. Okay. So this is going to be a career related hackathon. So what is going to happen over here is that in addition to the chance to win this money, I mean the prizes, you'll also get a chance to maybe get like a better interview at Wipro. So because Wipro is taking this very seriously, so anybody who manages to come in the manages to win a prize, they probably will be invited for an interview and they will get preferential treatment compared to any other applicants. So if anybody is looking for a job and they are from, and this challenge is for only India. So if you are from India and if you are interested in this, definitely do check this out. And it is, I think I'm seeing this for the first time. This sort of a hackathon. Okay, so I have a question. Is there any task available who are not into coding? Yeah, I think there are design challenges. If you go to topcoder.com, like if you go to .com/challenges, you can actually find like design challenges over there. And sometimes even we have ideation challenges. Okay, but that those are very rare. But over there, you only have to share your idea. For example, there will be a competition that uh, you have to come and suggest how an app should work, like how the pages should be set up, and you can even like submit drawings of that. So, but those are very rare. Normally, we have machine learning challenges, programming challenges, and design challenges. And under design also as well, there are like several tracks. There is UI track, there is simple design track. So I think you should go through all the challenges to get an idea, like what sort of challenges Topcoder hosts. Yeah. So okay, so regarding this Wipro hackathon career hack, this is actually a very big deal. So people from India actually should consider at least checking this out. If you're not even like, if you're not interested in a job, maybe just to win the prize. But if you are looking for a job, I think this is a very good opportunity. So like this is you can come over here and ask any question. I've shared the link in the chat, and there's going to be on February 14th. Okay, why join Wipro session? Okay, so you can ask any question about Wipro engineering and R&D. I think this hiring is going to be at a very prestigious kind of a team. This is like not a usual sort of a hiring. I mean, not for freshers. It is like a bit more prestigious. So if you're interested, definitely register.
Okay, so there's a question. Someone already working with Wipro is not eligible. Okay, good question. I think maybe not, but I'm not sure actually. Okay, showcase your hacking skills and win an offer later. Crack the code and step into Wipro with pride. So, by the way, Manonita, are you currently working with Wipro? I think you must be, right? Okay. So actually, I'll have to ask Jesse. Or the best thing to do is to just register over here and ask in the forum, because this must be a very common question. I think this should give a chance, right? For example, if somebody is working in a different team and if they want to show their talent and they want to move to a different team, this should be a good opportunity to do it. So let's see. By the way, if you manage to get any answers and if you like the hackathon, please do come in our next meetup and let us know. Okay, about your experience. You're welcome. Okay, so moving on from this, we'll have. Okay, so back to discussing about our skill builders. So by the way, like if anybody is interested in Top Coder, and I'm actually telling this to like people who will be watching this in the recordings. So if you are interested in Top Coder and if you want to make money in the long run, and actually like if you want some flexibility in life, because getting a job is a very good, very good idea. But like many people actually also want to live a sort of like a freelancer kind of a life. So if you're interested in that, Top Coder is going to be a very good opportunity. It's going to give you a lot of opportunities in that area. So but many people are actually stuck like where to start. So the best way in my opinion is to actually join the skill builders. Okay, so I'll just show you one of those skill builders. So this skill builders is for Power BI and AWS Athena. Okay, so AWS Athena is sort of like a query SQL kind of a thing, but it is meant to interact with Amazon services. So, and actually there's going to be a lot of AWS Athena work in the future. So anytime when you see a skill builder, and if you are new to Top Coder, or if you are like if you are a veteran at Top Coder but you want to learn a new skill, it's a very good idea to actually compete in this. Okay, because you also get that newbie vibe goes away. Okay, when you start interacting in the forum, and if you submit once, you'll get the confidence. So it's definitely preferable to actually go through these the skill builders. So in addition to that, we also have a Lightning JS skill builder. So Lightning JS is meant for like creating, I think it is for smart TV apps. So definitely an interesting area. And I think this segment is growing because like nowadays, almost every TV is a smart TV and there are a lot of apps in that. So it's a good skill to have, and it will also differentiate you from other programmers if you have this skill. So, and by the way, like there are a lot more challenges on Top Coder. Skill builder challenges going on. So if you just go to topcoder.com/challenges, you'll be able to, and if you like go through the list, you'll be able to find a lot of skill builders going on. So yeah. Okay, so in our regional calls, we'll be discussing some gig recommendations. But those are like more specific to our area, as in South Asia. But every now and then I also include some gigs that are common to everybody. So like one of those is this Top Coder project managers, development co-pilots. Okay, so this is about like, for example, if you want to be a co-pilot in Top Coder, so you can apply through this. But for this, you need to have some like experience. Like there are two ways to do it actually. Like either you have to be an experienced Top Coder competitor looking to leverage the skills and experience on our platform. These competitors will have competed in the last 12 months and be regular contributor to our forums or Slack. So if you think you are like, you've been competing on Top Coder a lot, so you can consider applying.
or if you have like at least 5 years of current professional experience, and if you have a good resume, you can definitely register and go through the application process and all. By the way, we have a question again for this. Wipro employees are not eligible, right? So which one are you talking about? This Copilot? Manunisha? Okay. Okay, Copilot. I don't, just a minute. Okay, top coder and Wipro employees are not eligible. Okay, all right. So for gig opportunities, Wipro employees are not eligible. Okay, so yeah, maybe it's some internal policy, or maybe like almost no company actually allows like people to work in other areas, right? So maybe that's the reason. So as it's possible that many other companies also have this policy, like proper big companies. So maybe that is the reason. So, but in case if someone can apply to this, definitely do consider applying. Yeah, and then we have an India only Azure architect. So this is if you are into Microsoft Azure, and if you have like confident in that area and you have some proven skills, those skills can either be in your current job, or it can be in your it can be on top coder. Okay, like both can work. If you have like proven without any doubt that you are very good at some technology on top coder, then that also counts as experience. It's not necessary that you have to like work 2-3 years in a company to prove it. So if you have won any challenges, do mention it in your resume that I competed in such and such challenge and I won a prize. So that would be like definitely considered as a skill for you. So this is for India only. It's a like compensation is also pretty good. The duration is 6 weeks, and it will be a full time, 40 hours per week, so 8 hours per day. So if you're looking for a full time role and you're into Azure, you can check this out. Then we have a similar sort of a gig. This is also a full time. This is 40 hours per week. This is for 24 weeks. Okay, so it's almost like a half year. Yeah, 6 months. So compensation is slightly lower than the Azure architect role, and over here it's like a typical front end skills, right? HTML, CSS, then React.js. So nowadays, like a lot of people are skilled in this area. So if you have these skills, you can consider applying. This is for India only again. Okay, so moving on to this is any location gig. So if you are a cloud engineer and if you're looking for a full-time role, and this is like a 26-week again, a year has 55 weeks, so half a year. But they extend. Okay, so if somebody is like doing a good job, then they extend. For example, last week we had Amit Kumar. I think his name was Amit. Not sure what the surname was. So he actually is working for 1.5 years for some company. So he has got like received like two extensions. So this can actually turn out to be like a proper full-time job as well. So interesting. That is interesting. But you need to be careful that you are comfortable with the working hours. So this is like CET. So you need to be sure that you'll be available during those hours. Yeah. So these were my picks for this week. And if you'd like to explore yourself, you can just come at topcoder.com/gigs. And if you would like to search something like Node, you can just find all the gigs that have Node in it. Or if you'd like to filter it by location, you can just come over here. You can India only. Okay. So do check this out if you are looking. It's a good idea to actually keep a tab on this. For example, if you currently cannot apply, but maybe in the future, if you would like to explore, it's a good idea to at least keep a track of what's going on. So maybe you can optimize your skills according to that, so that you are ready for it. So yeah. Okay, so moving on from top gigs this week, we have rapid development match. Okay, so this is a new format of a Top Coder. Sorry. So
it's sort of similar to the format that happens at the Topcoder Open. So I don't have a link right now, but like this is being discussed in the on Slack. Maybe you'll also receive an email for this. So if you are interested in development and like this is a completely new format. So if you are into this like development, you should check this out. Yeah, I don't have a link right now, but you should expect something in your email soon. Okay, so moving on to our calendar. So these are some of the key events coming up. So right now, like on January 17th, we started the NASA Comet Detection Challenge. And then February 3rd, we have a Wipro career hack. Then there for Algo folks who are into Algo, like the hardcore competitive programming folks, they have SRM on February 2nd. Then on Feb 4th, we have RDM4 that I talked about. And on February 9th, we have a rookie SRM. So SRM is basically single round match. Okay. So it's like a competitive programming sort of a thing. And yeah, I think like normal developers don't usually compete in that. But like many people are skilled in that as well. So if you are into that, definitely do check it out. And Feb 9th, we have a marathon match. So marathon matches are basically sort of like SRM, but it goes on for a longer time. And it's like a puzzle kind of a thing. You have to know maths and very good in data structures and all that. So if you are into that, pretty good way to check your skills. On Feb 10th, okay, so we are going to have a winning Topcoder skill builder competitions with S. Deepak Kumar. So basically, Deepak, who's currently with us right now, he's going to, I think this is going to be an AMA or something like that with Luis, maybe. So it's going to be with Luis, right? Yeah. Okay, yeah. So actually, Mr. Deepak over here has actually won the VeloVix Skill Builder Challenge, and he also actually won the main hackathon during Topcoder Open. So he won a first prize of $5,000 during TCO, and he also won the Skill Builder. So, and he shared his inspirational story last week. If you have not watched that, definitely consider watching that. It's available on YouTube on the official Topcoder channel. So, I mean, I told your story to Jesse and the team, and everybody was inspired as well, and they wanted to know more about you. So I hope during this meeting, you'll be able to share your experiences. Yeah, definitely. Yeah. Okay, so moving on to February 19th, we have another SRM. And then finally on February 24th, we have a AMA, like Ask Me Anything with MVP designer Yoki. So MVP is like there's an MVP program at Topcoder. Like some people are MVPs, most valuable players. So he's like a veteran designer. He's been working with Topcoder, I think, like for more than 10 years now. So you can definitely join this and ask any questions if you're into design. Okay. Yeah. So right now we are done with the presentation. If you have any questions about anything I discussed about for RDM, I'll have to actually talk to Pena about that. Apart from this one, if you have any questions about anything, you can just ask me. And even if you have any question related to anything else, please do feel free to ask. By the way, Deepak, you can ask the question that you were talking about the challenge. Yeah, world level challenge. Yeah. So can you repeat what was the question? Yeah, actually, yeah, you can ask in actually, Hindi. I wanna know how PJ. Yeah, मैं जानना चाहता था कि जो पीजे मैथमेटिशियन जो थे, जो एक रैंक पे थे, वो एक्चुअली जो भी डाटा फीड का यूज करा था उन्होंने, ठीक है, तो एक्चुअली उस टाइम में पाइथन बिगिनर था जब ये चैलेंज आई. अभी मैंने थोड़ा सा अभी आगे फीड किया है, तो एक्चुअली उस टाइम में दिया लगा नहीं, तो मैं बस वो जितने भी वर्ड्स थे, जैसे स्पेनिश में
हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स वो एक टेक्स्ट फाइल में था, ठीक है। फिर वो एक पाइथन के मेन फाइल में वो चेक कर रहे थे, आप जो भी वर्ड इनपुट कर रहे हो वो सारे वर्ड को चेक कर रहे हैं बारी बारी से कि ये कौन सा वर्ड है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, ये है। तो हाँ हाँ, ऐसे चेक कर रहे और फिर उसके बाद वो आउटपुट फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्या करा था, टेक्स्ट ब्लोब यूज करा था। एक्चुअली उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, बट वहां पर एक मेंशन था कुछ करके कि वो मेथड है ना डिप्रिकेटेड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है वो, ऐसा डेप्रिकेट हो चुका मैंने है। उस टाइम ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब हाँ, जब आपने मेरे को लॉग फाइल भेजा, एरर लॉग, मैंने देखा उसमें बहुत सारे एरर्स थे और बहुत सारा चीज रिपीटेड हो रहा था बार बार। तो मैंने जाकर देखा फिर से टेक्स्ट ब्लोब को, तो वहां पर वो मेंशन था कि ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपील नहीं करा, क्योंकि पूरा सोर्स कोड ही चेंज करना पड़ता उसके बाद। तो मैंने अपील करा नहीं। तो बस मैं वही जानना चाह रहा था कि ये जो प्रोसीजर है जो उन्होंने बनाया, क्या इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने हिंदी में देखा मोर देन 4 लाख से ज्यादा वर्ड थे, ठीक है। और हर वर्ड को बारी बारी से चेक करना, तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टाइम टेकन प्रोसीजर है। हाँ, मतलब मैंने चला के देखा तो शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब उसको बनने में। मतलब टाइम, मतलब 1 घंटे के अंदर ही जनरेट हो गया था सारा। जैसे 1 घंटे क्या, मतलब मुझे ठीक से नहीं पता। आपने क्या रन करके देखा है वो फर्स्ट प्राइज विनर का कोड? देखिए, जो जैसे हम लोग कोई दूसरा नहीं, लाइब्रेरी यूज मैंने करते हैं ना, रन करके नहीं देखा। जैसे हम लोग कुछ कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हैं ना, तो उसमें इंटरनली इसी टाइप का कुछ रहता है इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जैसे उसमें भी बहुत बार होता अच्छा है कि इसी टाइप का अच्छा। कुछ इम्प्लीमेंटेड रहता है, बस वही है कि हम लोग को दिख नहीं रहा होता है सामने से। तो और जैसे ये क्या कर रहे हैं, देखिए, मतलब ये शायद 1 मिनट देखता हूँ क्या कर रहे हैं ये। हाँ, ये देखिए क्या कर रहे हैं ना कि देखिए, चेक इफ हिंदी कर रहे हैं ना, तो ये डिफ लिब कर नाम का कोई लाइब्रेरी है, वो यूज कर रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा अच्छा उसमें अच्छा यूज कर रहे हैं ये गेट क्लोज मैचेस। तो ये जो लाइब्रेरी है ना, अच्छा जो डिफ लिब अच्छा लाइब्रेरी है, ये अच्छा अच्छा थोड़ा एफिशिएंट मैनर में उसको स्कैन कर रहा होगा शायद, ठीक है ना। जो अच्छा सर्च जिसको बोलते हैं ना, मतलब उस टाइप से कुछ कर रहा होगा कि अल्फाबेटिकली पूरा सॉर्ट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा और उसको अच्छा। सॉर्ट बब, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सॉर्ट जो हाफ हाफ करके सॉर्ट करते हैं, बाइनरी सॉर्ट जिसको हाँ बोलते हैं शायद। हाँ 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 तो हाँ बाइनरी हाँ। सॉर्ट करके ये सर्च करता है ना, तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है, कुछ लॉग एन टाइम लगता है इसमें। तो ये अच्छा। एक एक करके पूरा पास नहीं कर रहा होगा ये, ठीक है। ये सिंपल कर सकते हैं, जैसे आप वही, आप उसको आप अल्फाबेटिकली करेंगे पूरा, उसके बाद डायरेक्टली आप उसको उस टाइप से कर सकते हैं, तो होता है। और ये जो लाइब्रेरी है ना डिफलिप, इसमें इसी चीज को बहुत एफिशिएंट मैनर में इम्प्लीमेंट किया गया होगा। तो वही है। अरे ये तो मैं चेक कर ही रहा था कि जो टाइम कितना लग रहा है, टाइम अगर बहुत लगता तो इनका भी रिजेक्ट हो जाता, तो वैसा हुआ नहीं इनका। तो वही है। हाँ, तो बस मेरे माइंड में बस यही क्वेश्चन था, क्योंकि हाँ। मैंने रन नहीं करा। हम्म, मैं भी एक बार, हाँ। और हाँ आपने जो इनपुट फाइल सेंड करा था हाँ हाँ कि हाँ आप ये चेक करके देखो, हाँ। और अगर हाँ हम्म मतलब अगर सही से आपका कोड वर्क कर रहा है तो हम्म आप मतलब मेरे को अपील करो, ऐसा करके। हम्म हम्म तो मैंने वो फाइल चेक करी थी मैंने हम्म खुद अपने सोर्स कोड को, हम्म और डेफिनेटली वो काफी चीज बार बार रिपीटेड हो जा रहा था। और हम्म रिपीटेड हो क्यों रहा था? हम्म एक्चुअली वो एक्चुअली इंटरनली ना टेक्स्ट हम्म ब्लोब क्या कर रहे हैं, वो हम्म इंटरनली गूगल एपीआई यूज कर रहे हैं, गूगल हम्म ट्रांसलेट एपीआई यूज कर रहे हैं। हम्म और कुछ टाइम बाद शायद गूगल एपीआई जो है वो शायद पेड हो हम्म गया है, अब वो फ्री रहा नहीं। पहले शायद फ्री थी, अब शायद पेड हो गई है। हम्म और इसी वजह से ना हम हम्म अब उसे फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम्म, बार बार वो बैड हाँ, रिक्वेस्ट 400 बैड रिक्वेस्ट करके एग्जैक्टली दे रहा था, ऐसा एरर एग्जैक्टली। करके कुछ आ रहा था। हाँ बहुत हाँ बहुत सारे सबमिशन के साथ यही हुआ है, ठीक है। तो हाँ बहुत सारे, क्योंकि क्या हुआ ना कि वो लोग, जैसे गूगल है ना, वो डायरेक्टली हाँ अलाउ हाँ नहीं करता है शायद ये, ठीक है। वो हाँ एनकरेज नहीं करता है इसको। हाँ मतलब उसका हाँ है शायद ऐसा है कि अगर आपको उसका एपीआई यूज करना है, तो उस हाँ पे आप जा करके आप रजिस्टर करो, उसका गूगल क्लाउड इंजन में आकर रजिस्टर करो, फिर वहां से आप उसका बनाओ, ठीक है। उसका शायद पेमेंट करना पड़ता है, हम्म, ये सब होता है उसमें। तो हाँ अगर आप ये, पेमेंट है। वो हाँ मैंने पेमेंट। हाँ, पेमेंट भी नहीं है उसमें। बहुत जैसे आप जो गूगल ट्रांस वगैरह यूज कर रहे होंगे ना, गूगल ट्रांस, हम्म। हाँ, तो उसमें मैं देख रहा था कि कम से कम 6-7 सबमिशन के साथ यही हुआ है कि मतलब रिक्वेस्ट उसमें फेल हो जा रहा था, या आधा स्कैन हो रहा था, उसके बाद फिर बाकी नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम हाँ था, बहुत सारे सबमिशन में ये प्रॉब्लम आया एक्चुअली। मतलब आप देखेंगे अगर, तो मेरे को लगता है कि 60% जो सबमिशन है, मतलब उसमें डिप्लॉयमेंट में कुछ ना कुछ इश्यू आया है। मतलब मेरे को लगता है कि लास्ट में बस 9 या 10 सबमिशन का मतलब ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग हो पाया है। बाकी 10 या हम्म 12 सबमिशन जो है डिप्लॉयमेंट स्टेप में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें।
तो हाँ हाँ तो वही वही है। एग्जैक्टली मैंने उसके बाद सर्च करा तो मैंने देखा था एक्चुअली वो 1 मिलियन कैरेक्टर स्कैन करने का ना हाँ वो $20 लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल कॉस्टली है बिल्कुल, एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात है कि एक्चुअली मैंने फोरम में बोला था कि मतलब ट्राई करने को कि सेल्फ कंटेंट सॉल्यूशंस बनाने के लिए, हाँ लेकिन मैं एक्चुअली हाँ हाँ रिजेक्ट नहीं कर रहा था मैं, मतलब फिर भी मतलब जैसे अगर कोई बहुत अच्छा अगर सोल्यूशन अगर उसमें होता तो कंसिडर कर हम्म, सकता था, लेकिन हम्म, बल्कि मैंने चेक भी नहीं किया लास्ट में, मतलब जो भी है जैसा भी है सबको मतलब चांस मिला है उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर मेरे को बोलना होता कि अलाउड नहीं है तो डायरेक्टली बोलता फोरम में कि अलाउड नहीं है, तो मैंने ऐसे डायरेक्टली बोला हाँ नहीं, तो इसलिए मैं सबको अलाउ कर रहा था। तो वही है अब, लेकिन अगर हाँ चल नहीं रहा तो फिर तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वही हुआ। हाँ उन्होंने जो भी हाँ जिन्होंने जो टॉप 3 में आए हैं तीनों पीपल्स, उन्होंने हम्म, अच्छा यूज करा एक्चुअली। उन्होंने खुद डेटा सेट बनाया है हाँ 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 या कहीं से भी उन्होंने उन लोगों ने हाँ डाउनलोड करा हो या हाँ खुद बनाया हो, हम्म, और वो एक अच्छा प्रोसीजर था। मेरे को लगा कि हाँ ये अच्छा प्रोसीजर है। हाँ बट मेरे को बस वही डाउट था कि मोर देन, मैंने हिंदी वाले टेक्स्ट फॉर्मेट खोल के देखा हाँ था, हाँ मोर देन आई हम्म थिंक अराउंड 5 लाख वर्ड्स थे अराउंड, ठीक है। हम्म तो मैं बस यही डाउट था कि अगर 5 लाख वर्ड इसमें है हम्म तो कहीं ना कहीं 2 या 3 लाख वर्ड हिंदी उस स्पेनिश में भी होंगे, उसमें भी हम्म होंगे। तो हम्म अगर एक एक वर्ड को अगर 7 या 8 लाख बार बाद चेक करा जाए हम्म। तो हम तो भाई डेस्टिनेशन पे तो काफी टाइम बाद ही पहुंचेंगे। हाँ नहीं तो इसका वही हाँ तो बता रहा हूँ, जैसे इसका जो सर्च करने हाँ का जो प्रोसेस होता है ना, ये जो हाँ 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 डिफ लिब लाइब्रेरी है ना, वो बहुत एफिशिएंटली कर रहा होगा इसी चीज को। जैसा मान लीजिए हाँ गूगल है, ठीक है, अब हम्म, गूगल है कि अब वो कितना 1 ट्रिलियन जैसे वेबसाइट्स को अगर वो मतलब क्रॉल करता है, ठीक है, तो हम्म, वो ऐसा थोड़ी है कि आप अगर कुछ एंटर कर रहे हैं जैसे आप कुछ भी एंटर कीजिए, टॉप कोडर एंटर कीजिए तो सबको हम्म, स्कैन करेगा, ऐसा नहीं है ना। वो एक्चुअली अपना खुद का अंदर में वही नॉर्मली आप सिंपल में बनाना चाहे तो सिंपल सॉर्टिंग कोई एफिशिएंट यूज कर लेंगे आप, जल्दी जल्दी सॉर्ट करके आप पहुंचेंगे वहां पे, तो उस टाइप का हम्म, होता है इसमें। ठीक है, तो वो पूरा उसको नहीं कर रहा होगा, और अगर कर भी रहा होगा तो फाइनल हम्म, फाइनल जो सोल्यूशन था वो फास्ट इनफ था तो कंसिडर किया जा सकता है उसको। हाँ मतलब हाँ वही डेफिनेटली बात हाँ है। हाँ वही है, हाँ। क्योंकि ऐसा बट इससे मेरे कंप्यूटर। को हाँ हाँ काफी आइडिया लगा, हाँ मैंने जब उनका सोर्स कोड देखा हाँ तो डेफिनेटली मेरे को काफी आइडिया लगा कि हाँ, कुछ डेफिनेटली रन करूंगा कभी हम्म हम्म अभी अच्छे हम्म से, और मैं हम्म कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा माइंड में है हम्म कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये काफी लोगों को मतलब काफी हेल्प हम्म कर सकता है, क्लाइंट्स हम्म, को या किसी को भी फ्यूचर में बिल्कुल। हेल्प कर सकता है। तो हम्म इस पे सोचा जाना चाहिए क्योंकि हम्म इजी वे हो, क्योंकि हम्म अगर हम इसको बोट में लगाते हम्म हैं, बोट चैट बोट में लगाते हैं हम्म और हम चैट बोट को कंसिडर करवाते हैं तो हम्म हंसते हैं और तुरंत अगर हम्म वो मैसेज जनरेट ना करे तो थोड़ा सा इशू वाली बात है, तो हम्म फास्ट फॉरवर्ड चाहिए। हम्म, तो इस पे हाँ, तो हाँ मैं फ्यूचर में देखूंगा। अभी तो मेरी पाइथन चल ही रही है, हम्म तो अभी जैसे आपने जो जो लाइब्रेरी बताया था हम्म पाइटॉर्च वगैरह ये सब, हम्म तो मैं उसको हाँ देखता हम्म हूँ, वो सारी हम्म कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कंसिडर करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कोई भी कंपटीशन कभी चल रहा हो ना, हम्म, अनलेस कोई मतलब आपको को पायलट बोले कि नहीं आप ये अप्रोच नहीं यूज कर सकते हैं, कोई भी अप्रोच ट्राई हम्म, कीजिए। ठीक है, बस यही है कि रीजनेबल एक फास्ट काम करना चाहिए उसको, बस यही है। जैसे हम्म, कैसे भी करके कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो उसमें, ठीक है, बस चीटिंग नहीं होना चाहिए कुछ हाँ कि ठीक है बस, और बाकी वो कितना कोई भी यूज हाँ कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो होता है प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ हाँ आपने ये मेंशन करा था कि फ्री होनी चाहिए। हाँ हाँ वो फ्री होनी फ्री चाहिए, होनी पेड चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम्म बाकी कोई सा भी हाँ हाँ कोई सा भी सोल्यूशन आप यूज कर सकते हो, कोई इशू हाँ नहीं है। हाँ आपने मेंशन करा था। तो हाँ एक्चुअली अगर आपने मेंशन कर दिया होता कि नहीं आप लाइब्रेरी वगैरह यूज नहीं कर सकते, आपको खुद से बनानी है, तो हम्म मैं पहले ही साइड हो जाता, बिकॉज वो 2 या 3 दिन मेरा पाइथन स्टार्ट किया हुआ हम्म टाइम ही हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं तो है ना, मैं जैसा क्या हुआ जाता हो, ही जैसे नहीं। बट देखिए यूज आप कर सकते हैं, बट फ्री होनी चाहिए। हाँ देखिए आप आपने अभी जैसे स्टार्ट किया है ना, आपने अपना टॉप कोडर हम्म, जर्नी स्टार्ट किया है अभी, तो हम्म, आपका जो धमाकेदार एंट्री हुआ अभी कि आपने दोनों फर्स्ट वाला जीत लिया अपना, है ना। तो हाँ इस टाइप का भी होगा, इस टाइप का भी होगा आपके साथ में, आप सब कुछ होगा जैसे अभी आपके ये हुआ था, आप इसमें से सीखेंगे। जैसा हाँ हम लोग हैं तो बहुत सारा हारे हाँ भी है, हम लोग बहुत सारा हारे हैं, बहुत सारे जीते हैं, मतलब क्योंकि बाकी सब लोग तो कंटेस्टेंट है ना, और सब लोग तगड़े हाँ हाँ कंटेस्टेंट लोग हैं। तो वही है। और ये हाँ कॉन्टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट तो ऐसे भी होने ही वाला था क्योंकि 22 सबमिशन था और बस 3 प्राइजेस थे इसमें, हाँ तो इसमें तो ऑलरेडी होने ही वाला हाँ था कि हाँ जिसका कोई गलती ना हो बस वही लोग जीतेगा, इसमें कंफर्म था स्टार्टिंग से ही। तो हाँ हाँ
एक्चुअली सीखने को मैंने उसमें पूरा ट्राई कैच जो भी होता है, ट्राई एक्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ लिया, जबकि अभी ट्राई कैच थोड़ा बाद का चैप्टर है, बट मेरा 3 दिन स्टार्ट किया हुआ था और मैं ट्राई भी पढ़ लिया, एक्सेप्ट भी पढ़ लिया। उसमें फंक्शंस को कैसे रिटर्न करते हैं, क्या वो मैं सब कुछ पढ़ लिया था। काफी चीज उसमें पढ़ लिया था, जबकि अभी अगर मैं प्रोग्रामिंग नहीं करता, ये वाला चैलेंज नहीं करता, तो अभी मेरे को टाइम लगता है अभी वहां पर पहुंचने में। बट मैंने काफी चीज वो 2 से 3 दिनों में काफी चीज सीख लिया, तो सीखने का पर्पज से काफी बेहतरीन था ये। और स्किल बिल्डर आ रहा है, इनका भी कुछ टाइम में रिजल्ट है। अमेजन अथेना, इस पे भी हमने पावर बीआई की मतलब अच्छा डैशबोर्ड बनाया है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल। और आप पाइथन चैलेंजेस भी ना करते रहिए, ठीक है। उसका मतलब आप ना, जैसा भी आप न्यू कमर है ना, तो मैं जब आपके स्टेज में था ना, तो मैं सब जगह सबमिट करता था, बिल्कुल टेंशन नहीं लेता था कि जीतना है कि नहीं जीतना है। इसमें मतलब ट्राई तो करूंगा ही पूरा कि जीतूं उसको, ठीक है। तो लेकिन सबमिट कीजिए बिंदास उसमें, कि उसमें। लेकिन ये होगा ही कि आप किसी किसी में जीतेंगे, किसी किसी में नहीं जीतेंगे, ये तो एक्सपेक्टेड है, होगा ये चीज। ग्रेजुअली आप इंप्रूव करेंगे सब चीज में। वैसे मैं मतलब मैंने मुझे पता नहीं था आपका सबमिशन क्या है, लेकिन जब सब मैंने स्कोर एंटर कर दिया, तब मैं देख रहा था, तो मतलब वही कि वो तो पता ही था कि आप जैसे आपने अभी नया नया स्टार्ट किया आपने, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू हो ही सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन था। बल्कि आप बोल रहे हो कि आप न्यू कमर हो पाइथन में, उस हिसाब से बहुत बढ़िया था, कोड वगैरह क्लीन था आपका, सब कुछ बहुत बढ़िया था उसमें, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया था। मैं कोशिश करूंगा अभी। और लाइटिंग जेएस का भी हम कर रहे हैं अभी। अच्छा, उसका भी तैयारी है, अभी देखते हैं। पावर बीआई का शायद 10 फरवरी से पहले रिजल्ट आ जाए, पावर बीआई वाले का, तो देखते हैं क्या होता है। और उसके साथ बट हमने कोशिश अच्छी करी है, और इसमें कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि बोलिए कंटिन्यू कीजिए। मैं वही कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस वाले में, क्योंकि इसमें हमने पूरा एफर्ट लगाया, और जो भी रिक्वायरमेंट था मैंने पूरा मैच कराया, और कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें तो रैंक करेगा, जो भी प्राइज है उसमें रैंक करेगा। और ऐसा। चलिए अच्छा है, ऑल द बेस्ट। बताइएगा मतलब नेक्स्ट कैसा हुआ। काफी सीखने को, एक्चुअली सच में मैं बताऊं तो ये अच्छी वाली जर्नी है ये, और काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल, उसके बदले कुछ मिल जाता है, पैसे तो मिल ही जाते हैं। एग्जैक्टली, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, तो है ही बिल्कुल। और आप तो सबसे उसको बढ़िया से आप ही यूज कर रहे हो अभी। चलिए, मनोनीता जी का एक क्वेश्चन है, इनका आंसर कर देते हैं दीपक जी, ठीक है। हाँ जी। क्या है, ड्यूरिंग TCO 21 मेन फोकस वाज ऑन रिएक्ट फॉर प्रोग्रामिंग, व्हाट वुड बी दिस ईयर्स फोकस, एंगुलर, रिएक्ट, प्लीज सजेस्ट। ओके, TCO के बारे में पूछ रही हैं कि शी इज आस्किंग अबाउट TCO, दैट लास्ट ईयर इट वाज, by the way, like Manonita, do you understand Hindi, or are you comfortable with English? Okay, I'll just answer in English because okay. So last year, I think what happened was in the development finals, and for first to finish, I think React was used. So the thing right now is, this is almost arbitrary at this moment. So what happens is, whatever, like the people who actually design the problem statements, they actually pick anything randomly, like not randomly, like they pick like very popular, any popular framework, and they create the questions around that. So by the way, which track are you talking about? Are you talking about first to finish or development track? Which one? Do you remember about this? Because I was involved in some capacity in development and first to finish, but I think over there, okay, so development, I think it was done by Shang. No. What is his name? Bill Edison. Okay, so I'll talk to him. But what is going on right now is that we are like rethinking a lot of things this year. So if you have any suggestions, please do share with us. You can send it through support, or you can just note down your ideas and you can share it over here. Okay, or you can also actually like share it over here. I'll just let me show.
Okay, so this community meetup is it happens at 10 a.m. Eastern Standard Time, America. So maybe like around 7:30 or 8 p.m. Indian time. 8:30. Yeah, 8:30. 8:30. Yeah. So you can actually, like, Jesse handles almost everything about TCO. So if you have any ideas, you can just come and share over there. And like this year, like maybe I will also be involved in the planning part. So if you have any ideas, you can share with me as well. I can share with her. So yeah. Okay. So I need to focus on any one of them because both of them have different learning curve. Yeah, that is correct. Okay, I'll take your suggestions that it should not be focused only on React. Just a minute. Let me note it down. Okay. Yeah. Yeah, this happens. Like actually what happens, there are on Mondays, there are 4 meetups. Okay. So first is my meetup. You can see my name, GetSJS India. Then you like Fajar will host for Indonesia. He talks in his own language, like Bahasa, Indonesian language. After that, at 8:30 p.m. Indian Standard Time, Jesse has the worldwide meetup. Okay. And right after that, Pena has the European meetup. So normally these are like focused in different regions, but there's no like anybody can come anywhere and they can ask any question. And you can definitely join Jesse's call because over there, worldwide aspects are discussed. So yeah. Okay, so I couldn't complete my learning for React last time, so just participated in QA challenges. Was able to secure 6 run. Okay, that is very good. Congratulations. Okay, so you generally only compete in QA, or you compete in dev challenges as well? Okay, so yeah, so okay, generally QA. Okay, so are you talking about like React being used in the QA finals, or are you talking about talking about devs? Okay, for development. Okay, so I don't know if there was a restriction to use only React. Oh yeah, I think there was. Okay, yeah, it is a very fair point actually. Yeah, like people who don't know React, they should have the ability to compete. I agree. Okay, I'll just convey your ideas to the team. Thank you for this. Any other suggestion that you have, you can just let me know. Okay, and I'll share my email as well, just in case you guys have anything to share. If it concerns me directly, I'll answer it directly, or if somebody else can answer it better, I'll convey it to them. Okay. And if you want, you can also come to the forum. That is actually the best way to ask any question, because everybody can say it. So anybody who knows the answer will immediately answer the question for you. So yeah. Yeah, welcome. Yeah, Ketan भैया, one more thing. Yeah. बोलिए. ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली अभी जब मैं जाता हूँ रीजनल में TCO 22 के लिए, तो वहां पे मेंशन है शायद कि टॉप 3 जो होते हैं सारे स्टेज के, वो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, TCO 22 के लिए जाएंगे वो. ठीक है. तो क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन होता है क्या जो हम TCO 22 में जा सकते हैं? देखिए, अगर आपको जैसे अगर घूमने आना है या मिलने आना है या अटेंड करने आना है, ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है अटेंड करना है एक्चुअली, कंप्लीट करने के लिए. देखिए, कंप्लीट अगर करना है तब तो एक ही ऑप्शन है, जो रूल्स है उसी के थ्रू होगा. ठीक है. जैसे आप कंप्लीट करोगे अपना जो भी आप जिस एरिया में हो, हम लोग इंडिया में है, तो अगर आप इंडिया में हो तो थोड़ा कंपटीशन यहाँ थोड़ा ज्यादा रहेगा शायद. किसी छोटे कंट्री से रहते हैं तो मे भी थोड़ा कम कंपटीशन होता है, लेकिन आप लोग स्किल्ड है काफी, तो आप कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं नंबर 1 में, कोई बड़ा बात नहीं है. ठीक है. बस वही है कि उसमें अगर आपको नंबर 1 पे आना है तो फिर वही है कि आपको काफी चैलेंजेस में कम्पीट करते रहना होगा, क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं वो लोग बहुत सारे चैलेंजेस में करते हैं कम्पीट, जो कि अच्छा आइडिया. देखिए, आप लोग अभी यंग हो तो आप लोगों को करना चाहिए एक्चुअली. जब मैं आपके एज में था, टॉपकोडा जब मैंने ज्वाइन किया था, वही कितना 5-6 साल पहले किया था मैंने ज्वाइन. आप रफली आप ही की एज का हूँगा मैं. तो उस समय जो भी चैलेंज आता था मैं करता था कम्पीट उसमें. अभी ठीक है,
तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप जैसे अभी आप फ्री रहते हो तो आप कीजिए सब कुछ में कम्पीट, खास करके अगर आपको क्वालिफाई करना है टीसीओ में, रीजनल्स में, या अमेरिकन वाला फाइनल में करना है, तो कम्पीट कीजिए उसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा। हाँ वो है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही आना है जैसे आप मिलना आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग आते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप असली टीसीओ में भी आ सकते हैं, आप असली टीसीओ में भी आ सकते हैं ऐसे घूमने के लिए, बस वही है कि आपको अपना खुद का पे करना पड़ेगा, बस वही रहता है प्रॉब्लम। बल्कि आपको अटेंड करना है तो आप प्रॉपर टीसीओ में भी आ सकते हो आप। ठीक है, तो आप कभी एक्चुअली भी आप मेरे को आप थोड़ा सा ना क्लियर हाँ करो एक्चुअली। हम्म, हाँ, एक्चुअली पूछिए। स्टेज 2 में ना हम्म मैं एक्चुअली 3rd रैंक पे ही था, ठीक है। हम्म बट लास्ट के पता नहीं कैसे हुआ, हम्म 2-3 दिन पहले अपडेट हुआ और मैं 6th रैंक पे चला गया। शायद मैंने वो कुछ चैलेंजेस थे मैंने करा नहीं, और जो जिन्होंने करा वो आगे चले गए। बिल्कुल। तो हाँ स्टेज 2 के हिसाब से मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ। हाँ, अच्छा। तो मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि अगर इसके अलावा अगर, हाँ ऐसे में अगर हम्म मैं डेवलपमेंट के लिए जा रहा हूँ हम्म, तो स्टेज 1 से लेके 4 तक सिर्फ 3-3 सब में सेलेक्ट होंगे, तो सिर्फ 12 लोग जा सकते हैं हाँ ऐसे ही होता है एक्चुअली, रीजनल। किसी एक ट्रैक में, किसी एक ट्रैक में। अच्छा, तो ये एक्चुअली पहले, हम्म, अच्छा किसी एक ट्रैक में, हाँ तो हाँ ये पहले इंडिया में होता है हम्म, और उसके बाद यूएस में होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे आप कोई भी कंपटीशन आ रहा है, ठीक है, उसमें अगर लिखा हुआ है ना टीसीओ लिखा हुआ है, एक मिनट देखना, एक अच्छा मिनट चाहिए मुझे, ठीक है। एक मिनट रुकिए देखता हूँ मैं कहाँ लिखा हुआ हाँ रहता आप है। मेरे, हाँ हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चैलेंज के बगल में देखिए लिखा हुआ है टीसीओ 22, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में नासा हाँ कॉमेट के हाँ नीचे। हाँ तो अगर ये लिखा है ना, हाँ हाँ तो ये जहां भी हाँ लिखा हाँ है हाँ तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो भी हम्म जीतेगा, ठीक है, या जो भी compete करेगा, जो भी सबमिट करेगा, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, हम्म, और उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको अच्छा वो ठीक है काउंट, ठीक है आपको उस वो जो आपका 3 महीने का पीरियड होता है उसमें वो ऐड होते आएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका रैंकिंग होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैराथन मैच में compete करता है और वो अभी 3 4 5 में सबमिट किया है, ठीक है। और फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, आपको ढंग का रैंक के अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ लोग सबमिट करते हैं, हम्म, उनका सिर्फ क्वालिफाइंग आ जाता है स्कोर, उसमें भी इसको पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, मिलता है, उसमें पॉइंट मिलेगा आपको। तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी फाइनल पॉइंट होगा उसमें ऐसे होगा कि अ, जो रीजनल्स है ना, उसी उसी लीडर बोर्ड से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे उसी में जो इंडियन लोग हैं, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसमें टॉप 3 इंडियन लोग को चुन लेंगे, चाहे कोई भी रैंक हो उनका। अगर टॉप 3 में तो अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है कि जो फर्स्ट 3 इंडियंस जहां पर भी हैं उन लोग को चुन लेंगे वहां से। तो सेम होता है एक्चुअली, जहां तक मुझे पता है, अभी नया कुछ चेंज हुआ हम्म। होगा तो मुझे पता नहीं है, लास्ट टाइम तो यही था। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब एक ही रैंकिंग है उसमें, जो फर्स्ट तो 3 इसके आपको। हिसाब से मैं इंडिया के लिए, हाँ बोलिए, पूछिए। इसके हिसाब से इंडिया के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ क्योंकि स्टेज 2 में हाँ टॉप 3 इंडियन में शायद मैं हूँ। ओके ओके, देखने दीजिए तो मुझे। पीसीओ में आते हैं यहाँ पे, रीजनल्स में आते हैं, सदर्न एशिया इंडिया के लिए है, लीडर बोर्ड डेवलपमेंट में आप बोल रहे हो ना। हाँ डेवलपमेंट स्टेज अभी 3 में तो चल रहा, हाँ एक मिनट, माय गुडनेस, ये कौन सा ये स्टेज, एक शायद मिनट, स्टेज 3 है क्या? नहीं ये एक मिनट देखने दीजिए। ये स्टेज 3 है। विल टेंटेटिवली टेक प्लेस, अच्छा तो आपका पिछले वाला स्टेज में होगा ना, अगर हुआ होगा तो, आपका अगर होना होगा हाँ तो। स्टेज 2, हाँ स्टेज 2। एक मिनट, तो इसमें एक मिनट, यहाँ दिख तो नहीं रहा है, स्टेज कैसे चेंज करें, आपको दिख रहा है क्या इसमें? या यू कैन आस्क द क्वेश्चन अनुनीता। इसमें नहीं दिख रहा है, मे बी मुझे चेक करना होगा कि मतलब उसमें क्या हो रहा है। एक मिनट, नॉर्मल में देखते हैं, ठीक है, फुल फुल रैंकिंग में देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? हेलो?
हेलो हाँ आ रही है आवाज आपको? हेलो, हाँ आवाज आ रही। Okay. Okay. So Manimita has asked a question. Jesse has shared a .pdf file through email, which mentioned my ID on 6th rank, and I was rewarded also. But when I check Topcoder site, I don't see my name anywhere in rankers. Okay, so Jessie sent you an email, or did you ask her a question and she responded to you? Did she send directly? Yeah. So okay, in that case, if she has sent directly, in that case, look what happens. Like in the global ranking, okay, so the global ranking for that, maybe you can be on 7th or 8th rank in the global ranking, but in the same leaderboard, if you are in the top 3, if you filter out all other countries and only if the Indian, like South Asia contestants are left, in that, if you have a top 3 rank, you will be considered. You get the idea? uh, like it is not necessary to be in the top 3 of the global rankings. But actually I'm not able to see, like this year the website is a bit different. So what I'll do is, I'll actually explore this better, okay, and I'll let you guys know like what is going on, because I can't see the leaderboard this year properly. Competition. Hello. Yeah, Deepak. Yeah. Here you can see. Yeah. Yeah, you can see. Okay, stage 2. Yeah, here you can. Yeah. Okay, so I think you will qualify. Stage 2. I think you will Yeah, qualify I am for. on 5. I am on Yeah. 5. You will qualify for I think the regionals, I think, because of this, because the first one I think is he looks from. Or Yeah. Okay, so it yeah, looks India also. yeah, so he, like if he's from India, it depends on, because like these two guys are not from India, I'm sure. Seri Volk is from Russia and XXCXY is from China. So even if like Z.Paint is from India, then you will be third. Okay, so in that case you will qualify, I think. तो इंडिया में कब होगा ये रीजनल्स? रीजनल्स आपको आएगा, मतलब ये आपको ईमेल आएगा उसके बारे में, अगर आप क्वालिफाई करेंगे ना, तो उसके बाद सारे डिटेल्स के बाद आएगा कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। नॉर्मली उधर होता है, जयपुर में बहुत बार होता है, जयपुर में या बैंगलोर में, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया, अच्छा ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 1-2 साल से ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और अगर इंडिया वाला जीत जाता हूँ या रैंक में आ जाता हूँ, तो फिर ग्लोबल में मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा? नहीं, इसका प्राइस अलग होता है शायद, इससे डायरेक्टली वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे आने का। अच्छा, इसके लिए ग्लोबल रैंक हाँ, होना चाहिए ग्लोबल के लिए। हाँ, ग्लोबल रैंक के लिए आपको टॉप 3 में आना पड़ेगा, मतलब ग्लोबल रैंक में। अच्छा, उसमें भी एक आप चीज देखिए, जैसे अगर आप किसी, जैसे बहुत लोग होते हैं उनको मतलब आने का बहुत मन रहता है टीसीओ में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप देखिए कि कौन सा ट्रैक में कंपटीशन थोड़ा कम है, आप डेवलपमेंट में भी कीजिए और आप उसमें भी करो आप, ठीक है। जैसे मल्टीपल भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप मैराथन मैच में अगर आपको आता करना, तो मैराथन मैच में आप कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो दो में compete करते हैं। 1 मिनट, मैंने किया था क्या 2017 में डेवलपमेंट के लिए किया था मैंने compete। अच्छा नहीं, हाँ, वो थॉमस क्रेनित्सास जो है उसने किया था, मुझे याद है, वो डेवलपमेंट और फर्स्ट टू फिनिश दोनों में उसने compete किया था 2017 में। तो आप कर सकते हो मल्टीपल में, ठीक है। आप मल्टीपल ट्राइज करते रहो, आप Q&A में करना, आप Q&A में भी करो, आपको फर्स्ट टू फिनिश में करना, फर्स्ट टू फिनिश में भी करो आप, ठीक है, जिसमें भी आप क्वालिफाई हो जाओ। और मेरे को लगता है कि फर्स्ट टू फिनिश में क्वालिफाई करना थोड़ा इजी हो सकता है मे बी, लेकिन आपने जैसे आप तो बस सिर्फ 2 कंपटीशन जीत करके आपको पॉइंट मिला है यहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छा है आइडिया।
तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है कि बड़ा बड़ा अगर आप 2 कॉम्पिटिशन जीत लेते हो तो फिर आपको उतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, तो वो भी अच्छा है। बल्कि आप जैसे आपने 2 जीता था ना, अगर आप नॉर्मल compete करते और मान लीजिए आप 6-7 में compete करते और 2-3 में अगर आप जीत जाते तो आपका रैंक मेरे को लगता है ऊपर हो जाता, और आपको पता नहीं होगा शायद उस समय, है ना? हाँ हाँ शायद। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो आपका जर्नी स्टार्ट ही हुआ है, आराम से आप कीजिए, जब भी आपका होगा तो आइएगा, मिलेंगे हम लोग। और वैसे भी आप आ सकते हैं, हाँ कभी भी आपको ऐसे मन करे तो आप बोलिएगा, जैसे से कांटेक्ट कीजिएगा, बस वही है कि आपको बस पे करना पड़ेगा अपना खुद का, लेकिन आप आ सकते हैं वहाँ पे, और क्वालिफाई कर अगर आप कर जाओ तो सबसे बढ़िया है, तो बोल नहीं कुछ। मिलने के पर्पस तो ठीक है, बट हाँ क्वालिफाई के पर्पस से जाएंगे तो थोड़ा हाँ, सा अलग मजा है, बिल्कुल। वो तो है। हाँ हाँ अलग बात है। अच्छा, हम्म। एक ये इन्होंने भी पूछा था, मनोनीता ने भी पूछा था कि एक्चुअली ये मतलब जो भी लैंग्वेज होता है, जैसे डेवलपमेंट में हम कर रहे हैं, हम्म। तो अभी तक हमने जैसे PHP करा है हमने, या हम्म। विक्स करा है, हम्म। या कुछ और है जो करा है, तो हम्म। क्या वहां पे जो लैंग्वेज चूज किया है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या वही देते हैं कि नहीं आपको रिएक्ट पे करना है या आपको इस पे करना है, तो वो ऐसे? देखिए, मतलब इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अच्छा और अच्छा। मैं भी एक्चुअली जब गया था फर्स्ट टू फिनिश में, तो मैंने एक्चुअली कंप्लेन भी किया था इसको लेकर के। हुआ क्या था कि उस समय मैं एक्चुअली कम्पीट करता था बस, तो मैंने कंप्लेन भी किया था इसके बारे में। मैंने तो मशीन लर्निंग का मैंने जीत करके मैं पहुंचा था, मशीन लर्निंग को पाइथन में जीत करके मैं पहुंचा था, ठीक है, फर्स्ट टू फिनिश में। अच्छा लेकिन वहां पे अच्छा। कंपटीशन जो हो रहा था वो एपीआई बनाने का हो रहा था, नोड जेएस यूज करके। तो मुझे तो आता भी नहीं अच्छा था उस समय, भूल गया था मैं एक्चुअली। आता तो था लेकिन भूल गया था उस समय, मतलब हाँ। कंपीट करने के लायक नहीं था उस समय। तो जो भी तैयारी हो कर सकता था करके किया था मैंने कंप्लीट। तो मैंने बोला था इसके बारे में, तो इस पे बहुत डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए। फिर सोचा गया कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कराते हैं जिसमें कोई कोडिंग लैंग्वेज का यूज ही ना हो, मतलब किसी से भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर अलग ही टाइप का कुछ बन जा रहा था उसमें, प्रॉब्लम डिजाइन नहीं हो पा रहा था। तो फाइनल डिसीजन यही हुआ कि जिसके पास ज्यादा स्किल्स है वही जीतेगा। तो नोड जेएस, रिएक्ट जेएस सबको मिला करके कुछ प्रॉब्लम बनाओ, और तो जिसको जीतना है वो सब में स्किल दिखाएगा। तो मतलब एक सिंपल डिसीजन ये लिया गया था, लेकिन मे बी इस साल चेंज हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि इस साल बहुत सारा चीज स्क्रैच से डिस्कस किया जा रहा है। तो पॉसिबल है कि फिर बहुत सारे चीज चेंज हो सकते हैं इस साल। तो आपका बाय द वे तो अगर आपका, हाँ, हाँ, अगर हाँ, आपका कोई भी अगर आइडिया ये हो, पता कब चल जाता है? हाँ। आपका कोई भी अगर आइडिया हो तो आप एक काम करना प्लीज, आप उसको डिस्कस करना उस पर, अपना कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हो, आपका जो कॉल होने वाला है, ठीक है। या आप ईमेल भी कर सकते हो हम्म, जैसी को, क्योंकि वो लोग आइडियाज के लिए बैठे रहते हैं, आप कुछ भी उनको ठीक है आइडिया दोगे आप वो कंसिडर करेंगे उसको, ठीक है। ठीक है। बस वही कि आप सजेस्ट पर भी फिर करिए कि, भी रिएक्ट, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं वही रिएक्ट जेएस और नोड जेएस हम्म। कर लेना। एक्चुअली नोड पे मैंने काम तो करा है, बट रिएक्ट पे नहीं करा है, तो हम्म। ये प्रिपेयर रखना है कि हम्म। अगर कभी आ जाए हम्म। तो फिर ऐसा ना हो कि भाई कि नहीं मैं कम्पीट ही नहीं कर पा। हाँ हाँ, वहां जाके अगर जीतना है, जैसे एक होता है कि बहुत लोग सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। और फ्रैंकली बोला जाए तो मेरा वही रहता था, ठीक है, मतलब अगर ऑनेस्टली बोलूँ आपको तो, ये क्वालिफाई करके जाना है, वहां पे देखेंगे वहां पे क्या करना है। अगर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सूट कर रहा है खुद को तो फिर अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर नहीं सूट कर रहा है तो फिर जितना हो सकता है करेंगे, मतलब रियलिस्टिक रहेंगे थोड़ा। तो ऐसा प्लान करके आते थे हम लोग। अ, लेकिन अगर आपको जीतना है तब आप एक काम करो कि आप जैसे ही आप देख लो कि आपका रैंक आ गया है, ठीक है, आप क्वालिफाई करने वाले हो, तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आप रिएक्ट जितना हो सकता है सीख लो, नोट जेएस वगैरह जितना हो सकता है आप सीख करके पहुंचो वहाँ पे। वैसे लेकिन आप लोग अगर सजेस्ट करोगे तो हम लोग ट्राई करेंगे उसको चेंज करने का, लेकिन वही है कि आप लोग को आइडिया देना होगा कि क्या होना चाहिए फॉर्मेट। क्योंकि मतलब ये डिस्कस बहुत बार हुआ है कि क्या लैंग्वेज यूज करना है, फिर लास्ट में सब डिस्कस होने के बाद होता है कि यार कुछ कुछ फाइनल हो ही नहीं पा रहा है इसमें। तो कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज यूज करके उसको प्रॉब्लम को बनाओ, कि अब डेवलपमेंट में क्वालिफाई हुए हो तो फिर करना होगा तुम्हें, ये एपीआई डेवलप करके दिखाना होगा। तो अभी का लॉजिक यही है। हाँ या दिस कैन बी डन। फिलहाल मैं सोचूंगा। और हाँ हाँ हाँ, ये बोल रही है कि रिएक्ट और एंगुलर दोनों का ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंगुलर और व्यू जेएस का भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, एक्चुअली ऐसा सोचे तो लगभग लगभग सब होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वही तो है ना, वही है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैंने जो कम्पीट किया था 2017 में, ठीक है।
तो वो उसमें था कि अच्छा। कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसमें जो करना है करिए, उस टाइप का था। तो पाइथन में मैंने किया था डेवलपमेंट, तो उसमें 4th या 5th रैंक था मेरा 12 लोगों में। अच्छा। तो लेकिन वही है कि उसके बाद वो वाला खत्म हो गया था, क्योंकि एक्चुअली वो मैराथन मैच टाइप का कंपटीशन बन के रह गया था, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया वो। बहुत लोग बोल रहे थे कि ये डेटा साइंस का कंपटीशन लग रहा है, ये डेवलपमेंट का नहीं लग रहा है देख के। तो वही है, देखना होगा कि क्या कर सकते हैं उसमें। अगर आपके पास आइडिया है कि किस टाइप का फॉर्मेट हो सकता है, और ऐसा होना चाहिए जो डेवलपर लोग को सूट करे, ऐसा ना हो कि वो मैराथन मैच लगने लग जाए देखने में। ठीक है, हाँ ये हम लोग कर सकते हैं कि अपना खुद का टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, किसी को पाइथन यूज करना है तो पाइथन कर सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। हाँ ये हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब जो भी कुछ है ठीक है, हम्म लाइक जैसे है तो नोड भी है हम्म कर सकते हैं, हम्म पाइथन तो जेंगो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। मतलब इस तरीके से मतलब जो भी आपको जो हाँ ऐसा। हम्म हम्म मैं भी देखता हूँ, अगर कुछ सजेशन होगा तो मैं डालूंगा। और हम्म बाकी ग्लोबल के लिए थोड़ा ट्राई करेंगे आप। ट्राई कीजिए, बिल्कुल मेहनत कीजिए। और इसमें बस वही है कि आपको क्वांटिटी अपना बढ़ाना होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करो आप। तो ये मतलब चैलेंजेस का क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा, हाँ। पहले थोड़ा कम हो गई। हम्म बिल्कुल। और बताइए, और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो आप लोग। या Manonita, if you have any questions, you can ask. If not, maybe I'll end the call shortly. Okay, so do we have any meetup next with Jasiya? So it is tonight. Maybe I don't have the link. Let me check. Yeah, so yeah, let me just check if I have the link or not. Okay, so I don't have the link. Okay, just let me check. Okay, I'll have to stop sharing. I'll just let me share the link. Okay. Yeah. Okay, so I've sent all the links over here. You can copy these. Okay, so yeah, welcome. Okay then, guys, if you have any questions, just let me know, or else I'll end the call in a few seconds. Any last questions or remarks? It was a good discussion, by the way. Like, thanks for the questions, Manonita and Deepak ji.